Hello guys, today we are going to discuss that cell and a little bit more about the cells. Okay, so yesterday we have discussed the uh, things like how to launch a server, that is EC2 instance we have launched in the AWS cloud. Okay, so here I would like to connect that server that we have created. Okay, so here I have already configured that particular server in my putty. So let's select that. So how to go? First you will click on the putty software, then here the putty is there. So I have already saved one server information. Then I will put a load. Once the things is loaded, I can do a open. So once it is open, your server is going to be connected. So this is your Linux server that we are going to do the practice here. So people are, I listened from different people like it is being little bit faster so that they are not able to pick whatever I am telling. So today onwards I'll go slowly, but yes, you guys should wait for at least another half an hour. So our class duration was 2 hours. Today onwards, it will be at least 2.5 hours. Okay, to make the things slow. In the very first, I would like to tell about this particular white screen. What is this white screen is? So this white screen is nothing but your terminal. So I will prepare a notepad. Okay, I'll prepare a note in the notepad. Okay, so you can tell it's a running note. Okay. So terminal, what is actual terminal? Terminal is nothing but it is the screen. It is the uh, interface. Okay, using which we are going to give request to the system and get the required or get the necessary result. Okay, so this is called terminal. In the terminal, this white screen is actually called the terminal. In this terminal, whatever this line you are getting, this line is called as prompt. Okay, so the first text that you are getting after connecting your system, that is nothing but your prompt. So what is the prompt is? Prompt is nothing but the it is the line of text after which a user can type its command, then press enter key to execute the command. So this is the prompt. So this is a prompt where a particular user is going to type something. So prompt is responsible for prompting for the command. It actually prompts for it waits for it prompts for the command. It prompts for the command from a user. Then when you are executing any command, for example, there is a command called dat. All the commands are actually small. Command क्या होता है? What is the command actually? Command क्या होता है पहले एक बार लिख देंगे. So command क्या है? तो ये जो जहाँ पे command लिखेंगे उसको command prompt बोलते हैं. खाली prompt बोलेंगे अच्छा नहीं है. Command prompt बोलेंगे. So command क्या होता है फिर? ना set of instructions. Okay.
It is a set of instructions combined, or again I am telling, command is a set of instructions which can be used by the user for achieve a particular requirement, such as क्या क्या हम लोग कमांड को यूज करके क्या क्या कर सकते हैं? we can interact with the file system, और क्या कर सकते हैं ना? we can interact with the processes. Okay, then we can interact with the memory. Okay, so there are lot of things. So anything a user is expecting from a server or system or computer in Linux, the user need to request to the computer using commands through the terminal. तो यूजर को क्या करना पड़ेगा ना, एक कमांड्स को यूज करके ही रिक्वेस्ट करना पड़ेगा सिस्टम को कि मेरे को ये चाहिए। तो सिस्टम से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? थोड़ी तुम सिस्टम को एप्पल मांगोगे। सिस्टम जो दे सकता है, सिस्टम क्या करेगा? आपको एक फिल्म चलाओगे, आप एक फिल्म चलाना चाहते हैं, आप एक फाइल बनाना चाहते हैं, आप एक डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं, आप एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, whatever things that you are expecting from a system, in the GUI mode you are doing the double click. In CLI mode you have to give lot of commands. For every action there is a specific command. For every requirement, for every each and every requirement, there are many commands. Okay, so every command, a man we need to understand, and to remember to interact with the system. Okay, next. So कमांड हम लोग यहाँ पे देते हैं। तो कमांड को हम लोग टाइप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज हम लोग को डेट लिखना चाहते हैं, वी नीड ए डेट, देन TAT कमांड लिखेंगे, एंटर करेंगे तो मुझे डेट दिखेगी। आई नीड ए कैलेंडर, सो CAL लिखेंगे, कैलेंडर लिखेंगे तो आज ये इसी मंथ का कैलेंडर दिखा। तो ये सब कमांड्स है। ओके, देन ये कमांड कैसे एग्जीक्यूट होता है? तो दैट इज ए सेल। सो सेल क्या करता है ना, सेल is an interpreter between the user and the kernel.
kernel, okay, which is responsible for identify the command or verify the command, verify the command and execute it. Verify the command. So पहले क्या कैसे करेगा ना, which is responsible for first accept the command. Okay, accept the command from user, accept the command from user through terminal. In the form of the commands. Okay. So यहाँ पे मैंने accept the request लिख देता हूँ. Accept the request from the user through terminal in the form of commands. Then next काम क्या है? Now verify करेगा. Verify the command whether that command is valid or not. Command अगर valid है तो उसको check करेगा. If valid command, then it will engage. It will send the request, or it will utilize. Okay, it is good. It will utilize the kernel for executing the requested command and generates or returns the output तो मैंने एक लाइन में नहीं लिख के अलग अलग लाइन लिख रहा हूँ. रिक्वेस्टेड कमांड को ये एग्जीक्यूट करेगा. फाइनली it returns the result to the user through the terminal. Okay. After the command is executed by the command. So these are the steps. Okay. Cells क्या करता है? It's an interpreter between user and kernel. Accepts the user request through the terminal in the form of command, then verify the command whether that command is valid or not. If the valid command, then it is utilize the kernel for executing that requested command. Then finally it returns the result. अगर नहीं है तो अगर if that is not a valid command, it founds if the requested command is not valid, then cell is going to give an error in the terminal. Okay, so these are the things. So command ऐसे execute होता है कोई भी चीज को. तो कमांड हम लोग क्या बोले कि एवरीथिंग के लिए हमको कमांड चाहिए. तो ये जो नोट्स मैंने लिखा, दिस इज रनिंग नोट, सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स वंस यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स. ओके, नेक्स्ट क्या है कि हम लोग बोल रहे थे कि ये हमारे सिस्टम पे कुछ यूजर्स रहते हैं. ओके, सिस्टम पे जो कनेक्शन हम लोग करते हैं, देखो व्हेन वी कनेक्टेड द सिस्टम, व्हेन वी कनेक्टेड द सिस्टम, first of all you will have to check whether what is whether it is Linux or not. So uname command is used to display the kernel name. Uname command is used to check the kernel information. And uname -a is a command.
So here uname is a main command and minus a is a option to the uname. Uname is the command, then minus a is the option for this uname. So if you are putting uname minus a, then it is going to display a lot of informations. What are the informations? If I will individually check, then I can get some other options so that I can get the individual data, like what is this Linux, what is this particular thing. So one by one, let it be checked. Let's check. Okay, uname minus s if you're putting, then you are going to get that Linux. Okay, then uname minus n you are telling, then this information is coming, which is nothing but your kernel, sorry, server name. Okay, then this information will come like uname minus r, the release note, release. Then uname minus v is going to give you this much information till 22. Okay, it is given. Okay, then uname minus I is the hardware, uname minus P is the processor, and uname minus M is the machine, uname minus O is the operating system. Just see, I have shown you these 8 information. Either you can use these individual options for these 8 information, or directly you can put uname minus A to see all the informations. So this is all about your server and kernel. Okay, so I have told you that what is this uname command is. 1 minute, guys. 1 minute, guys. Okay. Guys. So as I told you, there are, so uname command we have discussed that uname is able uname is used to display the system information, kernel information mainly. Okay, so then ये जो सिस्टम हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि ये सिस्टम पे हम लोग बोले कि सेल एक काम करता है, जो इसके पीछे जो काम करता है, जो हम लोग कोई कमांड को जो एग्जीक्यूट करते हैं, ये सारे कमांड को एग्जीक्यूट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? सेल का है। अच्छा, सेल का अगर है, हम लोग को एक चीज पता होना चाहिए कि सेल क्या होता है। ये तो हम लोग बोल दें कि व्हाट इज सेल, राइट? तो का सेल का जो टाइप होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आते हैं। If you will check, there are different types of cells are there. So if you want to see the cell, what is the cell you are currently use, then echo $shell. तो echo क्या करता है ना? echo is a command, echo is a command which is going to see something, going to show something. echo के सामने जो लिखोगे, echo के सामने मैं लिखा hello, hello लिखा, तो ये hello दिखाता है। सर यहाँ पे हेलो लिखा, हेलो दिखाया, यहाँ पे सेल दिखा, बिन बैच क्यों दिख रहा है ना? ये सेल इज ए वेरिएबल। हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? डॉलर सेल लिख रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट हेलो लिखे थे। हेलो इज ए सिंपली वर्ड, इट इज ए वर्ड। जिसके पहले डॉलर रहता है, वो आगे वाला चीज को वेरिएबल बोलते हैं। तो ये जो वेरिएबल सेल जो है, इसके अंदर ये वैल्यू स्टोर्ड है। सेल में एक वैल्यू स्टोर्ड है, तो कोई भी जो, अच्छा, ये जो वैल्यू इसमें स्टोर है, इसको बोलते हैं वेरिएबल। और ये वेरिएबल का वैल्यू को दिखने के लिए हम लोग डॉलर यूज करते हैं। सर ऐसे कुछ वेरिएबल हम लोग खुद बना सकते हैं क्या? यस, तो मैं एक वेरिएबल बना दो, लेट्स से नेम इक्वल टू, लेट्स से आई एम टेलिंग एफवीडी ग्रुप। So I have created one variable called name which has the value called fvd group. So if I want to see the value of name, then echo $name. देखिए क्या आया? fvd group आया। So like this,
डॉलर किसके पहले लगता है ना, वेरिएबल से पहले। कोई वेरिएबल हम लोग, सो वेरिएबल से पहले डॉलर लगता है। यहाँ पे सेल से पहले भी डॉलर लगाया, तो नेम से पहले डॉलर लगाने में नेम में जो वैल्यू स्टोर हुआ था वो दिख रहा है। अगर सेल में जो डॉलर लगाया तो सेल में जो वैल्यू होता है वो दिखाता है। दैट मीन्स वी कैन सी द वैल्यू ऑफ वेरिएबल यूजिंग द इको कमांड, और वी कैन सी इट डायरेक्टली स्ट्रिंग यूजिंग द इको कमांड। सो यहाँ पे मैंने जो सेल दिखना चाहा, तो द कमांड इज इको $sell। ओके, देन हम लोग क्या बोले कि कम लिनक्स पे क्या, सो लिनक्स के बारे में पता चला कि इट इज द सिस्टम इंफॉर्मेशन यूजिंग द यूनेम कमांड। देन सेल के बारे में जान लिए। तो कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि हाउ टू गेट द यूजर नेम यूजिंग व्हिच यू हैव कनेक्टेड टू द सिस्टम। यूजर नेम दिखने का जो कमांड होता है, हु एम आई। देखिए मैंने यही यूजर नाम को यूज करके आया था जो हमारा पुट्टी में जो कनेक्ट किए थे, कि अगर पुट्टी खोलेंगे यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करने का लोड करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखिए कि EC2 यूजर लिखे, देखिए EC2 यूजर। सो दैट यूजर इज नथिंग बट दिस यूजर। ओके, सो इफ यू वांट टू चेक using which user ID you have connected to this system, that is the EC2 user. then ID कमांड। तो यहाँ पे ID कमांड हम लोग करेंगे। ID कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द यूजर ID and its corresponding group ID. What's the meaning of that? Now, when a user is being created, at that time immediately another group will be created against that particular user. क्यों ना, everybody in the real world, everybody likes to be in a group. So यहाँ पे ये ग्रुप में एक चीज को रहने का क्या फायदा होगा ना, हम लोग अगर ग्रुप को किस चीज दे देंगे तो दैट इज गोइंग टू बी अप्लाइड फॉर ऑल द यूजर्स। लाइक मैंने अभी बोला कि ये टेस्टिंग ग्रुप को एक कोड दे दो, टेस्ट करेंगे। दैट मीन्स वो टेस्टिंग ग्रुप में 10 लोग को मैंने ऐसे काम दिया, 10 लोग को इंडिविजुअली काम देने से अच्छा ग्रुप को दे देंगे। तो वट एवर वी आर गोइंग टू like apply the action on a particular all the users, instead of individually giving the actions to that particular group, individual members, we can apply that particular group, so that all the members of that group is going to apply, going to be get that particular action. So यहाँ पे जो UID हम लोग जो ID कमांड लगाते हैं, उसमें यही जो पर्टिकुलर यूजर का ये यूजर आईडी देन ग्रुप आईडी इंफॉर्मेशन लिखता है। तो दिस 1000 इज ए यूजर आईडी, दिस 1000 इज अ ग्रुप आईडी। बाय डिफॉल्ट हर एक यूजर का ग्रुप नेम वही होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हर एक यूजर का ग्रुप नेम वही यूजर होता है, यूजर आईडी एंड ग्रुप आईडी समान रहता है। देन ये ग्रुप का भी, ये जो यूजर आईडी यूजर कभी कभी अदर ग्रुप के अंदर भी रहता है। क्यों ना, बीइंग ए नॉर्मल यूजर, हम लोग व्हाट्सएप का देखिए, व्हाट्सएप में क्या करते हैं हम लोग एक ग्रुप में रहते हैं, दूसरा ग्रुप में रहते हैं, तीसरा ग्रुप में रहते हैं। क्यों, मल्टीपल ग्रुप में रहते हैं ना। हमारा मल्टीपल ग्रुप में रहने का एक इरादा है। लेट्स से वी वांट टू गो टू पिकनिक, हम लोग एक ग्रुप बनाते थे कि हम लोग पिकनिक ग्रुप बन लेंगे। हम लोग बोलेंगे नहीं, वी विल डू सम कल्चरल एक्टिविटी, तो वी विल क्रिएट अनदर ग्रुप। वी विल गो टू गोवा, वी विल क्रिएट अनदर ग्रुप, राइट। सो लाइक दिस यू आर क्रिएटिंग डिफरेंट ग्रुप्स इन द व्हाट्सएप। यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर में क्या होता है ना, लोग यहाँ पे जो भी काम करते हैं ग्रुपली काम करते हैं। लेट्स से कोई बोलते हैं डेवलपमेंट टीम, मतलब 4-5 लोग मिलकर कोडिंग करते हैं, इसलिए बोलते हैं डेवलपमेंट टीम। डेवलपमेंट टीम बोलते हैं डेवलपमेंट ग्रुप बन गया। लाइक दिस टेस्टिंग टीम, टेस्टिंग मतलब टेस्ट करके ग्रुप बनता है। तो वट एवर पीपल आर देयर, दे आर कॉल्ड द टेस्टिंग मेंबर्स एंड द ग्रुप इन नेम इज टेस्टिंग। सो हियर ये जो EC2 यूजर भी 2-3 ग्रुप के साथ है। तो देखिए ये खुद का यूजर आईडी एंड ये ग्रुप आईडी। तो जो UID GID देता है, तो UID इज हियर, GID नथिंग बट द प्राइमरी ग्रुप। देन दिस EC2 user is a part of other groups also, like ADM, like system Janmal. So these are the two other different user groups in which that particular EC2 is belongs to. Okay, so ID command is used to
display the user information and its corresponding group information. Then ये जो यूजर के बारे में हम लोग थोड़ा बता रहे थे। अच्छा, और एक कमांड दैट इज कॉल्ड क्लियर, CLEAR। क्लियर कमांड क्या करता है ना, स्क्रीन को क्लियर करता है। इफ यू वांट टू क्लियर द स्क्रीन देन क्लियर, ओके। कुछ भी आपका स्क्रीन को कचरा कर दो, के बाद CLEAR लिखिए, दिस इज गोइंग टू क्लियर द स्क्रीन, ओके। देन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यूजर के बारे में दिख रहा है, तो और थोड़ा यूजर इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। हमारे पास जो यूजर्स रहते हैं, क्यों रहते हैं यूजर को ना, सिस्टम को कनेक्ट करेंगे इंडिविजुअली, वो कनेक्ट करके फिर उनका काम जो है इस सिस्टम के अंदर करेंगे। तो कोई भी सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए उसका यूजर आईडी एंड उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड लगता है, ओके। कोई भी यूजर को कनेक्ट करने के लिए उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड लगता है। So currently whatever users we have in the system, if you want to see, then there is a file called /etc/passw. This is one of the file, okay, this is one of the file। और ये फाइल को, कोई भी फाइल को कंटेंट दिखने के लिए, ये फाइल को खोलेंगे तो दिखेंगे उसके अंदर क्या है, राइट। फाइल अगर है तो उसको खोलना पड़ता है। कोई भी फाइल को ओपन करने के लिए देयर इज ए कमांड कॉल्ड कैट कमांड। कोई भी फाइल को ओपन करने के लिए देयर इज ए कमांड कॉल्ड कैट कमांड, ओके। तो ये कैट कमांड के द्वारा हम लोग कोई फाइल के अंदर का कंटेंट दिखते हैं। तो व्हाट इज द कंटेंट ऑफ दिस इट इज पासवर्ड ना, these are the content present in this password file. What is that? Now these are the users present in my system। मेरे जो सिस्टम के अंदर इतने सारे यूजर्स हैं। out of that the first user is called root user। the first user is called root user। if you will check the id of that user, that is 0, then the next is group id। 0 is the user id, 0 is the group id। तो ये रूट का जो यूजर आईडी होता है 0, ग्रुप आईडी होता है 0। दैट मींस रूट इटसेल्फ इट्स ओन ग्रुप। देन देखो ये बीन, डेमन ऐसे सब आता है। उसके बाद फाइनली आता है EC2 यूजर। सो यहाँ पे अगर आप दिखोगे, यहाँ पे अगर आप दिखोगे, देखिए ये रूट से लेके लास्ट तक आपको EC2 यूजर मिल रहा है। तो EC2 का जो आईडी यहाँ पे 1000 है और रूट का जो आईडी 0 है। एंड ये बीन से लेके देखो और सबका आईडी 1 से लेके 999 तक है। एक्चुअली देखो 998 है, किसका मिलेगा 999। सो 1 से लेके 999 के अंदर जो आईडी रहता है वो सब आईडी का देखिए यहाँ पे लिखा है कि एस बी नो लॉगिन, नो लॉगिन, नो लॉगिन। क्यों नो लॉगिन ना, ये जो यूजर नेम साहब दिख रहा है ये कभी सिस्टम को लॉगिन नहीं करते। तो ये किसके लिए है फिर ना, these are the users which are responsible for running some of the processes, that process, those processes are called daemon processes। हमारे सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस रन होता है। तो हम लोग जो प्रोसेस को रन करते हैं उसको बोलते हैं यूजर प्रोसेस। सिस्टम जो प्रोसेस को ऑलरेडी रन करके रखता है उसको बोलते हैं डेमन प्रोसेसेस। ये डेमन प्रोसेस अगर नहीं चलेगा तो हम लोग हमारा प्रोसेस को नहीं चला सकते। बीइंग ए नॉर्मल यूजर, हम लोग हमारा प्रोसेस को चलाने के लिए, मतलब जो कोई भी प्रोसेस चलाते हैं, लेट्स से मैंने अभी कोई कमांड चलाऊंगा, वो कमांड को चलाने के लिए ये सारे यूजर है, सॉरी मैं जो कमांड चला रहा हूँ वो कमांड को चलाने के लिए और कुछ प्रोसेस चल के रहना चाहिए। वो सारे प्रोसेस को चलाने के लिए ये सारे यूजर्स बने हुए हैं। सो दीज आर द यूजर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर रनिंग दोज डेमन प्रोसेसेस एंड दीज users are called as system user। So what are the users? One is root user and these are the users which are system user। How you will identify?
they are system user. Now the ID is from 1 to 999. ये देखो यहाँ पे 74, यहाँ पे 996, वहाँ पे 997. So the ID which is less than 1000 and greater than 0, these users are called the system users. And another identification कैसे ना, यहाँ पे देखो राइट साइड में नो लॉगिन लिखा है, ये लोग सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली यूजर है जो कि आपका डेमन प्रोसेस को चलाते हैं। ये कोई इसको ये लॉगिन करना नहीं पड़ता है। और हम लोग क्या करते हैं, इस सिस्टम को एंट्री करने के लिए EC2 यूजर के द्वारा हम लोग एंट्री मार रहे हैं। तो ये जो EC2 यूजर होता है, normal user, root is the super user, and the users which are except that normal user and root user, they are called the either system user बोलोगे। All the system users having user ID varies from 1 to 999। अच्छा, कभी कभी यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखा sudo user। What is that sudo user? ना समटाइम्स ये रूट जो यूजर है, हाँ ये रूट यूजर किसके लिए, उसको बोलते हैं सुपर यूजर ना। रूट यूजर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज सच एज user management commands. Like suppose we want to create one user, we want to delete a user, we want to modify a user, we want to install a command, ये सारे काम करने के लिए हमको जो प्लस सम कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके लिए जो यूजर होता है वो होता है रूट। दैट इज कॉल्ड, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सुपर यूजर। जैसे कि हमारे घर पे पिताजी क्या करते हैं, पिताजी इज द सुपर, हमारे फादर जो होते हैं सुपर यूजर होते हैं। फादर का क्या होता है, जो भी कुछ घर का काम करना है फादर किसको कभी पूछेगा नहीं, बट हम लोग अगर घर पे कुछ भी काम करेंगे पिताजी को पूछ के करेंगे। तो वी आर द नॉर्मल यूजर। सो नॉर्मल यूजर EC2 यूजर, अभी यहाँ पे एक नॉर्मल यूजर दैट इज EC2 यूजर बिकॉज उसका आईडी 1000 से शुरू हुआ है। जो आईडी 1000 से आगे 1000, 1001, 1002 दे आर कॉल्ड नॉर्मल यूजर्स। तो ये नॉर्मल यूजर है और ये सिस्टम यूजर है। तो नॉर्मल सिस्टम यूजर को जितने सारी काम करने को परमिशन है, ये सिस्टम के अंदर नॉर्मल यूजर को नहीं रहता है। ओके, सो अगर मैंने अनदर यूजर बनाऊंगा इधर राम यूजर, तो राम विल बी नॉर्मल यूजर। So the RAM user cannot do any task like other than executing the simple commands. जो commands जैसे कि कोई फाइल क्रिएट करना, कोई डायरेक्टरी क्रिएट करना, ऐसे छोटा मोटा काम करने के लिए जो काम जो एक बिंग यूजर आपको करना पड़ता है, तो वो काम करने के लिए नॉर्मल यूजर होके कर सकते हैं। बट आज आई टोल्ड, कोई यूजर क्रिएट करना, कोई कमांड इंस्टॉल करना, कोई कमांड को अनइंस्टॉल करना, कोई यूजर को डिलीट करना वगैरह काम करने के लिए, मतलब यूजर एडमिनिस्ट्रेशन कमांड बोलते हैं उसको। यूजर एडमिनिस्ट्रेशन कमांड और इंस्टॉलेशन कमांड्स का हम लोग चलाना चाहते हैं, देन रूट यूजर इज मस्ट। अच्छा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, अगर रूट यूजर मेरे पास नहीं है, बाय चांस मैं रूट यूजर को कनेक्ट नहीं कर, तो रूट यूजर समटाइम्स अवेलेबल अगर नहीं रहता है और रूट यूजर को मतलब रूट यूजर का पासवर्ड मेरे को पता नहीं है, बट रूट बोल रहा है कि मैं नहीं हूं तो तू कैसे भी करके कर ले, तो वो टाइम पे मैं रूट को बोलूंगा कि मुझे कुछ प्रोविजनिंग करके जाओ, ताकि तुम अगर नहीं रहोगे मैं वो काम कर सकता हूँ। दैट मीन्स ऑन बिहाफ ऑफ रूट a normal user can take charge of the root user. Sometimes suppose my manager is a root user and my manager is not here for 3 to 4 days, he went in the vacation, देन बताओ कि अभी कोई एक यूजर का मैनेजमेंट करना है या कोई कमांड इंस्टॉलेशन करना है, क्या मैंने उनको आने तक वेट करूंगा? फिर अब जो उस टाइम जो रूट यूजर जब छुट्टी पे जाता है या कुछ भी नहीं एब्सेंस रहता है, ड्यूरिंग हिज एब्सेंस he gives the charge to a normal user like EC2 यूजर। वो EC2 यूजर जैसा यूजर को क्या करते हैं, एक सुडो यूजर बना के जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सुडो यूजर, PSUDO, सुडो यूजर। तो दैट sudo user क्या करता है ना, on behalf of root it can also install any command, it can run that, you can create a user, you can delete the user, but क्या कैसे करेंगे, अगर जो कमांड को ऐसे डायरेक्टली चला रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी ये डेट कमांड चला है, ठीक है,
बट अभी यही मतलब नॉर्मल यूजर अभी ये डेट को सेट करेगा। अभी देखो एक्चुअल डेट जो है, एक्चुअल जो टाइम है अभी 9:47 है। ओके, तो मैंने 9 छोटी अभी बट ये दिखा रहा है 4:17, राइट? बट मैंने चाहता हूँ उसको चेंज करने के लिए कमांड इज डेट माइनस एस, डेट सेट करेंगे। तो इसको ऐसे लेके लिख लो पूरा, ऐसे सिंगल कोट के अंदर इसको पेस्ट कर दिया, उसके बाद सिंगल कोट दे दिया। उसके बाद मैंने चेंज करूंगा टाइमिंग, 9:47 लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे 9 लिख दिया, यहाँ पे 47 लिख दिया। देखो ये एरर मारेगा, क्यों मार रहा है ना, बोल रहा है परमिशन डिनाइड, क्योंकि ये सिस्टम का डेट चेंज होना जा रहा है। डेट सिस्टम का डेट चेंज करने के लिए आपको रूट यूजर का परमिशन लगता है। अगर मैं रूट यूजर होता था तो मैंने ये कमांड को एग्जीक्यूट करता था इजीली। अगर रूट यूजर नहीं है तो मैं नॉर्मल यूजर हूँ, कर नहीं सकता हूँ, बट इसी टू को रूट ने कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज देके रखा है। दैट्स व्हाई EC2 is called as sudo user. As EC2 user sudo user, he can use sudo space, then it will be set. देखिए, अब ये सेट हो गया। अभी अगर डेट कमांड चलाओगे आपका चेंज डेट दिखेगी। अभी अभी आपको 4:17 दिख रहा था, देखो अभी टाइम चेंज। So you got the idea what is sudo user? Sudo user nothing but it is a normal user which gets some extra privilege from the root, so that that normal user will behave like a super user. ओके, सो गाइस मैं आज इतना रखता हूँ। आपको मैं नॉर्मल यूजर के बारे में बताया और टर्मिनल बता दिया, कमांड प्रॉम्प्ट बता दिया, प्लस कमांड्स एंड शेल के बारे में बताया। सो लेट्स डिस्कस द थिंग्स टुमारो, द अदर थिंग्स। ओके, let's discuss the other things tomorrow. So tomorrow onwards we are going to read around 2.5 hour per day from 11 to 1:30 at least. In between, everybody please maintain your silence. Okay, keep silence so that less energy I will means I will spend some less energy. Okay, so that I can teach you for more hours. Okay, guys, if you 230 people are speaking with everybody and the sound is more, then other people are also being disturbed. So as a good student, I will request to you all during my class, don't speak with anybody. Don't speak. It is my kind request. And believe me, if you are not maintaining or not keeping silence, not maintaining that environment cool, then I am going to not doing that class. और ऐसे अगर मेरे को, मैं फिर आती सर को बोलूंगा कि मेरे को थोड़ा ये लोग साउंड बहुत ज्यादा कर रहा है, मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे मुझे वो पावर दे देंगे, नहीं यार सर, जिसको आप पा रहा है कि कोई डिस्कशन कर रहा है, कोई आपस में बात कर रहे हैं, उसको सीधा क्लास से निकाल दीजिए। अब मैंने उनको सिंपली बोलूंगा क्लास से निकल जाओ। अगर नहीं निकालोगे मैं आपको बाउंसर लगा के भी निकाल दूंगा क्लास। ओके, सो क्योंकि आप डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास को। सो टुमारो ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू teach you 2.5 hour. Okay, and you guys should maintain that silenceness. Okay, चलिए, सो आज के लिए मैं इतना रखता हूँ, टुमारो देखते हैं।